Good morning, all. So, dear students, today we are going to be new topic, that is torsion in shaft, and you are might be familiar with the torsion. Torsion, when you apply the tangential force on any surface, on basically the that object or surface, it's in the shape of circular in shape. And that case, when you applying the uh, twist or movement on that, that is say is called as a torsion. Okay, so let's see. So one of the important thing is here, dear student, that is some assumption we have to be take to derive the equation of torsion, which is very important here, because this equation, by using that equation, we are going to be solve the problems, numericals, or the concept of the torsion by using that relation. So this relation is between, yes, actually, there is the you can say the seven parameter is there, and we have a relation among them. So that relation, the derivation, soon we are going to be see that how to get that relation, and what is the meaning of all the component which is used in that relation. So that is called the torsion equation. What we are going to be derive in the now, and these are the some assumptions for deriving the torsion equation. So, development of shear stress angular twist in the shaft due to the twisting moment. So, the following assumptions are taken into the consideration for deriving the relation. So, what the parameters are: shear stress, angle, angular twist, length of the shaft, polar moment of inertia of the shaft. These are the parameters. Among them, we are going to be see the a relation. That relation is called in form of equation, that is called torsion equation. So, dear students, let's see the what the assumptions are. Material is homogeneous and isotopic. So that first condition is this, which where you are going to be apply that numerical that relation means torsion equation. The first condition that, so there must be material homogeneous and isotopic, and you already know that what is the homogeneous and isotopic. You are study the material technology, so you might be know that. And shaft is not initially distorted. It means shaft must be straight. There must not be any pre-distortion in the shaft before applying this relation. The, the displacement at a point in a shaft is proportional to its distance from center of the shaft, and that is called shear strain at any point is proportional to the distance from the center of the shaft. Okay, so the displacement of any point in the in the shaft is proportional to its distance from the center. So इसका मतलब ये है, the shear strain, value of shear strain is depend on the distance of any point from center of the shaft. Let's see, when you see the diagram, you will better understood. Next slide it will become. And the next point is the cross section perpendicular to the axis of shaft, which are plane before shaft is subjected to the twisting. So, which shaft we are going to be considered for the present analysis? So, their cross section like this. This is a cross section, dear student. This is called the cross section of the shaft. This one. This is cross section of the shaft. So here the cross section, or this is the axis of shaft. Suppose this is the axis of shaft. They both are they are perpendicular. वो एक दूसरे में perpendicular जो कि होता है, you know that. मतलब there must not be any distortion in the cross section in this portion. तो कहने का मतलब ये है.
ठीक है. So see this diagram. So this is a shaft. A shaft, you know that the circular structure which able to transmit the power or torque, that is called a shaft. ये definition है. Shaft की definition is that a circular structure which is capable to transmit the torque or power, that is called shaft. So dear student, ये एक शाफ्ट है. You are applied a torque T. This torque T आपने अप्लाई किया एक फेस पे और इस ये वाले फेस को फिक्स मान लिया इधर. या तो आप कर सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में एक अलग से टॉर्क लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए. ठीक है. नहीं तो वी आर नॉट एबल टू बी सॉल्व दिस, वी आर नॉट एबल टू गेट द relation we among them. So dear student, this is a shaft. You applied this torque and the length of the shaft is given and initial position of A. This is A. It is not clear, but this point is called A. This is A. When you apply this torque, it's A shift to A dash. This is A dash. New position is A dash. So this filament move to A dash, and this is the center of the shaft, and this line shifted to here. So the new position of this filament and for the old position, they made an angle theta. This is called the theta. You can clearly see here A and A dash, between the angle between A and A dash is theta, and R is the radius of the shaft, and L already know that this is the length of the shaft, and this the initial position of this filament and final position of this filament, उसके बीच में जो एंगल है that angle is called phi. ठीक है. let's see, we have taken this slice, this 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 piece of slice in downward. इसको ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो दिख रहा है यहाँ से उसको उठाया, ये वाले पार्ट को नीचे लेके आ गए, ये स्लाइस बना ली, उस स्लाइस को शिफ्ट किया यहाँ अगेन. सो वी नो दैट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आउटर फिलामेंट में एक पॉइंट है दैट इज ए. इट इज शिफ्ट टुवर्ड ए डैश. ए डैश में गया तो यहाँ पर एंगल बना दैट इज कॉल्ड फाई. अब हमने एक ले लिया कि एक ये आउटर रेडियस इसकी आर है, एक अलग रेडियस स्मॉल आर पे, यहाँ पर स्मॉल आर मान लो, स्मॉल आर यहाँ पर हो जाएगा ओ बी इक्वल टू स्मॉल आर ओ से बी की डिस्टेंस. सो वहां पर भी एक एंगल बन रहा है दैट इज अ फाई आर, वो एंगल भी फाई आर कहलाएगा. तो यहाँ ओ आर इजकल टू कैपिटल आर एंड ओ बी इजकल टू स्मॉल आर. ये एक छोटा सा फिलामेंट हमने ये वाला पार्ट को ले लिया तो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो ये डायग्राम है, अगर आपको क्लियर है सो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. चलो इसको समझते हैं इस डायग्राम को, और बहुत सिंपल है. पहले सिंपल आपके पास एक शाफ्ट था, आपने उसमें टॉर्क लगाया इस डायरेक्शन में टी, तो इस डायरेक्शन में उसको बैलेंस करेगा, तो ये ए डैश की तरफ चला गया, तो इनके बीच में एक एंगल बन गया ओल्ड और न्यू के बीच में, दैट इज कॉल्ड फाई. और एक एंगल इस लेंथ में बनेगा तो दूसरा वाला थीटा इधर भी बनेगा, तो वो थीटा कहला गया. यहाँ दिख रहा है जो आपको साइड व्यू में नजर आएगा. फिर ये ऊपर वाली स्लाइस को उठा के नीचे रखा, उसके बीच में भी एक पॉइंट्स ले लिया, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है ओल्ड एंड न्यू के बीच में दैट इज फाई आर, एंड देयर इज द टू रेडियस. एक है बाहर वाला ओ ए दैट इज कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ओ बी. सो ये है ये इस डायग्राम के बारे में. नाउ द शाफ्ट ऑफ रेडियस, जो शाफ्ट है एक्चुअल जो शाफ्ट है उसकी रेडियस है कैपिटल आर, लेंथ उसकी एल है जो आपको पता है, एंड वन एंड में आपने ट्विस्टिंग मोमेंट टी अप्लाई किया एंड अदर एंड ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई कर दिया और अदर एंड में वो ऑटोमेटिकली ऐड करना स्टार्ट कर देगा. एंड से द क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाइड एट ए एंड resisting moment, that is resisting moment T, it is applied anti clockwise at other end. इसको समझो जरा.
आपने यहाँ ये ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई किया तो इस डायरेक्शन में रजिस्टिंग मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको क्लॉकवाइज में ए साइड में किया ए क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, उसको रजिस्टिंग मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो डेवलप इन अदर एंड सिंस फाई इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंगल, फाई बहुत छोटा स्मॉल, इट्स देखो एक छोटो बहुत छोटा सा स्मॉल एंगल है फाई, सो शेयर एंगल फाई इज नोन एज शेयर स्ट्रेन। आपको पहले से ही पता है, आपको आपने पढ़ा है व्हाट इज द शेयर स्ट्रेन। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करते हो, आपने ये वाला डायग्राम अगर आपको याद हो कि हमने किया था, पहले एक ऐसे बॉक्स ले लिया था, उसी से रिजम्बल कर लो, इसको ऐसे फिक्स किया, इसको ये नए पोजीशन में जब जाता है यूं, ये वाला जो एंगल बनता है ये इतना छोटा एंगल होता है फाई, इसी को हम फिर शेयर स्ट्रेन बोल देते हैं, ये कहलाता है शेयर स्ट्रेन। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड हियर, सो यहाँ पर भी वो दैट इज फाई इज कॉल्ड द शेयर स्ट्रेन। सो लेट्स सी, that is called the shear strain, and theta is called angle of twist। एंगल ऑफ ट्विस्ट कहाँ मिलेगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट कहाँ मिलेगा, क्रॉस सेक्शन पे। सो एट एनी रेडियस स्मॉल आर, एक अपने से रेडियस हमने चूज कर ली, एक अपने से रेडियस हमने मान लिया कि एट एनी रेडियस स्मॉल आर शाफ्ट एट बी बी डैश। ठीक है, तो शाफ्ट बीबी डैश क्या है, बीबी डैश उसका आर्क है। आर्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क। तो आर थीटा बीबी इज इक्वल टू आर थीटा, आपको वो आर की लेंथ पता चल गई वहां से। देन शेयर स्ट्रेन फाई आर का मतलब शेयर स्ट्रेन फाई आर एट द रेडियस स्मॉल आर पे कितना शेयर स्ट्रेन हुआ, दैट इज बीबी डैश अपॉन लेंथ। ये आपको पता है, मोमेंट प्लस लेंथ ऑफ द शाफ्ट, that is BB dash upon L, and what is the BB dash, it is R theta, L is the length। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन आप निकालते थे, फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये बॉक्स है आपका, बिल्कुल इससे कंपेयर करिए आपको आ जाएगा समझ में। ये आपने यहाँ से लोड लगाते थे, लगाया, ये इस पोजीशन में पहुँच गया था, ये वाला यहाँ आ गया था, ये जो एंगल था आप बोल रहे थे कि ये फाई है, और ये जो फाई है इसको शेयर स्ट्रेन नाम दिया था, और इसको न्यूमेरिकली कैसे लिखते थे, मान लो ये वाला बी है, न्यू पोजीशन बी बी है, तो ये होता था बी बी डैश अपान ये जितनी भी इसकी ऊंचाई होती थी दैट इज एच, यही होता था। सेम यही फंडा ये लगाया कि ये एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ठीक है, उसमें एक फिलामेंट पहले ये था, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब वो उसको शिफ्ट किया यहाँ, तो ये बी से बी डैश हो गया, ये देखो जरा यहाँ से यहाँ गया, और इसकी जो लेंथ है मतलब लेंथ ऑफ द शाफ्ट, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया। होप यू आर अंडरस्टूड, ये यहीं से हमने शेयर स्ट्रेन के फॉर्मूले से यहाँ बना लिया। सो नाउ द शेयर स्ट्रेन फाई आर एट रेडियस आर इज बी बी डैश अपॉन एल, या आर थीटा अपॉन एल। शेयर स्ट्रेन थीटा, शेयर स्ट्रेन फाई इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर। सिमिलरली अगर स्मॉल आर पे बी बी डैश एल ये कहलाएगा, तो कैपिटल आर पे भी क्या हो जाएगा, ये सिमिलरली ए डैश, ये देखिए बी बी डैश इक्वल टू आर थीटा, तो ए डैश कैपिटल आर थीटा हो जाएगा। एंड फाई इज द, फाई हमने माना था शेयर स्ट्रेन, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये जो है शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू ए डैश अपॉन एल। सिमिलरली जैसे ये लिया तो ये हो जाएगा कैपिटल आर थीटा बाई एल, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। एंड मैक्सिमम स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, फाई अपॉन टाउ अपॉन फाई इज इक्वल टू टाउ अपॉन जी, वेयर टाउ इज अ मैक्सिमम स्ट्रेस एट द रेडियस आर। सो व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन फॉर्मूला, सिंपल, जो पहली यूनिट में पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू टाउ अपॉन जी, वहां से रख लिया। ये देखिए यहाँ ये फाई, ये दो, ये फाई है, ये फाई है। अब क्या करेंगे आगे, सो अब शेयर स्ट्रेन एट दैट रेडियस, उस रेडियस पे क्या हो जाएगा, अब और टाउ आर ले लेंगे, टाउ आर अपॉन जी,
So shear stress at that given radius and shear modulus of the material. Then shear strain. What is the shear strain? अभी निकाला आपने. Phi r is equal to r theta by L. शेयर स्ट्रेन. एंड हियर ये देखो, यहाँ पर आपने अभी फॉर्मूला से निकाला फाई आर इजकल टू टाउ आर अपॉन जी. तो ये इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ से यहाँ रख दी इसकी. तो ये टाउ आर अपॉन जी इजकल टू आर जी थीटा इजकल टू इतना. देन टाउ आर अपॉन आर, इस आर को इधर भेजा, जी को ऊपर भेजा, जी थीटा बाई एल. एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 जो पीछे इक्वेशन है, so we can write similarly, इसी तरह similarly from equation number 2 and 3. ये तो छोटे वाले r के लिए हो गया, b पॉइंट्स के लिए. देन टोटल के लिए we can find out tau r upon g theta by l. So अब हम देखो यहाँ पर भी एक g theta by l क्या है, g theta by l टाउ आर अपॉन स्मॉल आर. यहाँ जी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ आर अपॉन कैपिटल आर. इन तीनों को इक्वेट कर दिया, ये जो बना दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, हमको यही इक्वेशन चाहिए थी. अब नेक्स्ट पार्ट इज लाइक दिस. ये क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है. नाउ वी हैव टू बी नीड टू बी कैलकुलेट दैट अप्लाइड द टॉर्क. जितना टॉर्क कैपिटल टी अप्लाई कर रहे हैं वो उसका नेचर क्या होगा. द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट. एग्जैक्टली. सो कंसीडर एलिमेंट्री. देखो ये एलिमेंट्री रिंग ले ली हमने, ये देखो इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर. थिकनेस इज डी आर और इसकी सेंटर से डिस्टेंस इज स्मॉल आर एंड द आउटर रेडियस इज कैपिटल आर. पहले से ही पता आपको. सो डियर आपको पता है द कंसीडर एलिमेंट्री रिंग एट रेडियस आर एंड द थिकनेस डी आर. देन एरिया ऑफ दिस रिंग. इस रिंग की एरिया क्या होगा, ये जो पतली वाली अंदर है, दैट इज 2 पाई आर डी आर. 2 पाई आर इसका सरकमफेरेंस, डी आर को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दी 2 पाई आर डी आर. Now the shear stress tau r at radius r and tau is the maximum shear stress at capital R. So we have the relation between them. Small r is equal to tau r is equal to small r upon r tau. Both are the proportional. The because already we know discuss here कि tau is proportional to द रेडियस पे. तो हम आसानी से निकाल सकते हैं. तो स्मॉल टाउ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इनटू टाउ. टाउ द मैक्सिमम. ये देखो ये शेयर स्ट्रेस. तो शेयर स्ट्रेस एट द रेडियस स्मॉल आर एंड शेयर स्ट्रेस एट द आउटर सरफेस दोनों अलग होंगे क्योंकि वो डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. चलिए, द शेयर फोर्स ऑन स्मॉल एरिया. अब आपके पास टॉर्क आ गया है. टॉर्क ये देखो यहाँ टाउ आ गया. टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस. जब आपके पास स्ट्रेस है तो फोर्स निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. तो ये देख लियो, यहाँ पर निकालना है शेयर फोर्स ऑन स्मॉल एरिया. क्या हो जाएगा, डेल एफ इक्वल टू 2 पाई. ये एरिया तुमने पहले ही निकाल मारा है, 2 पाई आर डी आर इंटू दिस. इसकी वैल्यू रख दो, आर अपॉन आर अपॉन कैपिटल आर टाउ. देन यू जस्ट पुट दिस वैल्यू and you just rearrange. So this become tau r into 2 pi r square d square. ठीक है. अब let's now we have the shear force on small area. Once you know the force value on the small area and multiply by the radius, you will get the torque. देख लो जाए. The twisting moment on that shaft is del r. The twisting moment, ये जो ट्विस्टिंग मोमेंट डी एफ अबाउट टी एफ नॉट डेल एफ, इट्स टी एफ अबाउट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट. क्या हो जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू डेल एफ इंटू आर. देन डेल टी, देन डेल एफ की वैल्यू पीछे से ला के रख देंगे. तो नाउ दिस रिलेशन बिकम द टाउ आर इंटू 2 पाई आर क्यूब डी आर. देन टोटल ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई ऑन दैट शाफ्ट टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट.
इसको कहाँ से, सेंटर से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दो, रेडियस 0 से लेके कैपिटल आर तक इसको इंटीग्रेट करो। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे, अपर एंड लोअर लिमिट लगाओगे और इसको सेट ये करोगे, तो यू विल गेट टाउ अपॉन आर, व्हाट्स बिकम टाउ अपॉन आर, ये देखो जरा यहाँ पर पाई बाई 2 आर की पावर 4। ये जो पाई बाई 2 आर की पावर 4 है, ये है ये है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए शाफ्ट। अभी बता देता हूँ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अभी तुम इतना देख लो कि पाई बाई 2 आर की पावर 4, इट इज कॉल्ड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाई द जे, कैपिटल जे। तो इसकी जगह पे आपने जे रख दिया, ये देख लो इस वाले की जगह में। तो अब इसको रीअरेंज कर दिया, टी जे को इधर भेजा, टाउ अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 5। देन कंबाइनिंग द इक्वेशन नंबर 4 जो इससे पहले थी, यहाँ पर ये देखो 4, यहाँ पर टाउ अपॉन आर जी 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 थीटा अपॉन एल, यहाँ पर भी है टाउ अपॉन आर, तो दोनों में एक कॉमन है, तो ये नाउ वी कैन राइट टी जे अपॉन टाउ आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। दिस इज कॉल्ड द टॉर्सन इक्वेशन। आप इसको ध्यान से देखोगे, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द बेंडिंग इक्वेशन। ये बेंडिंग इक्वेशन के जैसे ही है, आप चाहे तो कंपेयर करके देख लो। देखो वहां पर बेंडिंग मूवमेंट होता था, यहाँ ट्विस्टिंग मूवमेंट होता था। बेंडिंग मूवमेंट को आप एम से रिप्रेजेंट करते थे, और नीचे क्या होता है, एम अपॉन आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यहाँ जे होता है, जे को बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर सिग्मा होता था बेंडिंग मोमेंट में, सिग्मा। यहाँ पर टाउ है, टाउ शेयर स्ट्रेस होता है, ये बेंडिंग स्ट्रेस होता है। वहाँ क्या था, सिग्मा अपन वाई थी, और यहाँ रेडियस ऑफ द शाफ्ट आर है। देखो एकदम एक जैसे दिखेगा, और यहाँ जी थीटा बाई एल, तो कहाँ ई वाई आर था। सो ये कुछ उससे मिलता जुलता ही है, समझ में आया। सो आप ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इनको ऐसे करके याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सबको पता है क्या होता है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपको एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। सो जेड एक्सिस वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपने एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जैसे आई जेड जेड इक्वल टू होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि अगर दो एक्सिस में जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, उसमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो तीसरी एक्सिस में उसकी वैल्यू होगी बाय द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू उन दोनों को जोड़ने से मिल जाएगी। तो किसी भी शाफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, सर्कुलर शाफ्ट होता है, उसका क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है, तो होता है वो बेटा पाई बाई 64 डी की पावर 4। चूंकि डायमीटर तो एक ही है, तो फिर से वही आएगा पाई बाई 64 डी की पावर 4। अब जब इसको आप जोड़ने जाओगे, है ना, तो ये हो जाएगा पाई बाई 32 डी की पावर 4। तो भैया ये कहलाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट। इसको आईपी से या जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 32 डी की पावर 4। क्योंकि अभी पिछले वाले रिलेशन में डी आर था, तो देखो ये कैसे हो जाएगा, इसकी जगह 2 रख दो, तो ये पाई बाय 32 ये आर 16 हो जाएगा, 16 आर की पावर 4। इसको कट पिट कर दो, ये हो जाएगा पाई बाय 2 आर की पावर 4 विच इज इक्वल टू जे।
अभी जो देखा पीछे π/2 r की पावर 4 को मैं डायरेक्ट बोल दिया j। तो भैया वो यहाँ से आया, तो पीछे की कहानी आप समझ लो। ये ऐसे उसका जन्म हुआ। होप यू आर अंडरस्टूड। So thank you so much. So this is all about the torsion equation, how to derive and how to proceed. It is very important. Sometimes it's come directly derive the torsion equation, or also say the establish the relationship between the shear stress and angle of twist, length of the shaft. So you have to derive this one only. So now thank you so much.